नमस्कार बच्चों। तो आफ्टर टर्म 1 we will start for PA2 course, chapter number 3, safety and first aid, right? Uh, this chapter you already learn in 4th standard. Here you can we can recall that safety from fire that you already learned in chapter number 4, about the safety from fire, uh, carelessness while handling burning matchsticks. मैस्टिक्स जब आप हैंडल करते हो उसमें अगर केयरलेस हो गए, केयरलेसनेस मतलब कि आप ध्यान नहीं रखते हो तो बर्न फायर लग सकती है, राइट। इलेक्ट्रिक फॉल्ट से भी फायर लग सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकता है, वैन यू कुकिंग एंड गैस लीक इन द किचन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ये चैप्टर में। देन what we have to do to prevent these fire hazards, right? Simple rules we have to follow. Some of that I will tell you. uh, One must be careful while handling fire, right? Electrical appliances and wiring should be checked regularly, right? Then synthetic clothes should not be wear when work in the cooking in kitchen, right? We should wear cotton cloth. Then if there is then check the gas. If there is gas leak, then open the door and all the windows and call the gas repairer, and take care about the faulty gas pipes should also be replaced, right? then उसके बाद है अगर मेजर फायर लगे, if there is major fire, then what you do? Then you call the fire station, right? Then if small fire is there, then what you do? Then there is a one special instrument is there, is called fire extinguisher, that you should use. Then इलेक्ट्रिक फॉल्ट से लगती हुई जो आग है उसमें क्या करना चाहिए, राइट? देन फर्स्ट एड, अबाउट फर्स्ट एड दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन 4th standard. What first aid you should give when cuts and scratches there. When cuts and scratches there, mostly clean the wound with running water to remove dirt. पहले तो डर्ट रिमूव करना चाहिए, हाँ, जो मिट्टी वगैरह लगी हुई है, धूल वगैरह लगी हुई है, उसको दूर करना चाहिए. देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स में होता ही है, सबको पता है आपको. एंड कवर द वाउंड विथ ए क्लीन एंड ड्राई गैस ऑफ और बैंडेज, या तो बैंडेज लगाओ. सॉरी. फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स. फ्रैक्चर्स मतलब क्या है? ए ब्रेक और क्रैक इन ए बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर. जब फ्रैक्चर होता है तब क्या करना चाहिए? तो ए क्लॉथ और स्प्लिंट should immediately be tied around the fracture to hold it, and the person must be rushed to the hospital immediately. Immediately हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए. Then about first aid about burns. If minor burns, what we have to do? We should wash the burnt area under cool water, cool running water, and after that apply antiseptic cream or a paste of baking soda. बेकिंग सोडा मतलब जो खाने का सोडा होता है, जो घर पे ही होता है किचन में, उसका पेस्ट बना के भी लगा सकते हो आप, राइट? देन
इफ़ केमिकल से जल गए हो, बर्न्स हो गए हो, देन व्हाट यू डू, रिमूव द क्लॉथ अराउंड द बर्नट एरिया। बर्नट एरिया जो है उसके आजू बाजू का क्लॉथ है वो रिमूव कर दो, मतलब निकाल दो, और उसको कूल ठंडे पानी के नीचे रख दो जहाँ बर्न हो गए हो, एंड देन you should wrap a bandage and go to the doctor, right? And first aid when nose bleeding, तो उसमें क्या करना चाहिए, मेक द पर्सन सीट अप, उसको अब बिठाना चाहिए, विथ हिज हेड टिल्टेड अपवर्ड, उसका हेड ऊपर रखना चाहिए, राइट, तो वो ठीक हो जाता है। और फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन, राइट, तो रिस्ट में जब प्रॉब्लम हो जाता है, रिस्ट और एंकल में मतलब जकड़ जाता है, तब ये प्रॉब्लम होता है, उसका फर्स्ट एड क्या है, राइट। तो इन सच केस मेक द पर्सन सीट इन द कंफर्टेबल पोजीशन एंड अप्लाई एन आइस पैक टू द एरिया। जब ऐसा वो स्प्रेन हो जाता है तब उसको आइस खींचना चाहिए उसके ऊपर, एंड स्वोलन एरिया जो है, जहाँ पे वो एरिया स्वोलन मतलब क्या, जो सूज गया है, वहाँ पे बैंडेज लगानी चाहिए, राइट, जो मूवमेंट ना करे, देन केयरफुली बैंडेज द स्वोलन एरिया टू लिमिट मूवमेंट, इसलिए मूवमेंट जो है वो लिमिट में हुआ, एंड द पर्सन शुड बी मेड टू रेस्ट, और रेस्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट है when any animals bite like dogs, you should take the vaccine of the rabies, right, and when such type of animal bites, you should clean the wound with water and cover the bandage, then immediately go to the doctor. Then a doctor will give the treatment to the patient, and if a dog is bite, then take the rabies, take the vaccine of rabies. Then if bee stings, मधुमक्खी जिसको काट लेती है, तो क्या करना चाहिए, अप्लाई ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, अगेन बेकिंग सोडा जो हमारी कुकिंग मतलब के किचन में होता ही है, उसका पेस्ट बना के लगा देना चाहिए, टूथपेस्ट लगा दे सकते हो, हाँ, और अगर हाँ बस इतना ठीक है। दैन स्नैक बाइट्स अगर हुआ है तो जहाँ भी स्नैक ने काटा है वहाँ पे एकदम कामली पर्सन को नीचे रखते हुए उसके जो जहाँ भी उसने उसको काटा है, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ द बीटन आर्म या तो लेग, जहाँ भी काटा है उसको मूवमेंट नहीं करना चाहिए ज़्यादा, एंड टू कीप द वेनोम फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू द बॉडी। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो वेनोम मतलब क्या, जहर उसकी पूरी बॉडी में फैलना चाहिए, इसलिए। एंड क्लीन द वाउंड विथ वाटर बट डू नॉट फ्लश, देन कवर इट विथ ए क्लीन ड्राई ड्रेसिंग एंड डोंट अप्लाई एनी आइस, राइट, एंड डोंट कट द वाउंड एंड टेक पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। ओके, सो ये हम इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 3 का, कल से हम ये स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।